Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Monty and you're watching Mystic Sorceress. So today we will be doing a pick a card tarot reading, and the topic of this reading is why you're struggling to find the right partner. Okay? Because since last few days I have been attracting many of my clients who have the similar problem that they are not able to attract the right partner. So I thought maybe many of you could have the same issue. If this is your life situation, anytime you find this video will give a message to you. It is a timeless video, and watch this video. Always remember this is a collective reading, so it is not going to resonate with all of you. Take what resonate and leave what does not. And do not forget to like, share, and subscribe to my channel. Click the bell icon so every time I upload a video, you get notified. And when you subscribe to my channel, I can easily pick up your energy when I do collective reading. And always remember another point, your future is not fixed. Okay? So, any future outcome you come across, if you do not like that outcome, you can change that outcome by changing your life choices. Okay? You create your future by taking choices in the present moment. So you have the power to create your future the way you want. And if you need any personal sessions, tarot reading, healing, or life coaching sessions, you can reach out. My WhatsApp number is given in the description. I would love to work with you guys. Okay, so here are two piles, pile number A and pile number B. So before you select your pile, focus on your breathing. Make sure you take deep inhale and exhale and repeat it until you feel relaxed. Once you feel relaxed, you can pick your card which is drawing your attention. And once you select the pile, you can check the description. You will get the timestamps there. Okay. So let's we proceed. Hello, pile number A. If you have selected this particular card, this is your reading. So pile number A, देखते हैं कि why you're not able to attract the right kind of a partner. Okay. So pile A, what I feel that आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अभी फिलहाल तो. ओके. आई फील कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक नए तरीके से कोई नया करियर को आपने स्टार्ट करा है, और हो सकता है कोई लोकेशन चेंज या जॉब चेंज या कोई प्रोफेशन को आपने चेंज करा है. हो सकता है आप पहले जॉब में थे, बिजनेस स्टार्ट करा है, या बिजनेस में थे जहाँ पे आपको लॉसेस मिला है, और फिर आप कोई नया प्रोजेक्ट या नया कोई ऑफिस आपने स्टार्ट करा है. ओके. बहुत लोगों के केस में मुझे लगता है कि आपका एक कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या कोई बिजनेस नहीं चला, कहीं पे काम नहीं बना आपका करियर के केस में, जिसके लिए आपने कुछ लोकेशन चेंज करा होगा. ओके. एंड अभी आप अपना जो नया करियर है उसमें बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो. ओके. एंड आई फील पहले अगर आप लोगों को लग रहा है कि राइट पार्टनर की एक नीड है, तो आपको उस पार्टनर के लिए एक लाइफ में जगह भी बनाने की जरूरत है. ओके. आई ऑल्सो फील कि पाइल नंबर ए, इस ग्रुप में बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका हो सकता है कि कोई इमोशनल लॉस से वो गुजरे हैं. ओके. हो सकता है आप जिनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, हो सकता है ये कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो, एंड ऑफ अ मैरिज हो, एंड ऑफ अ रिलेशनशिप हो, और मे बी लॉस ऑफ अ वेरी क्लोज वंस, लव्ड वंस, जिसको आपने खोया है. ओके. और हो सकता है उस लॉस के बाद या उस एंड ऑफ अ रिलेशनशिप के बाद आपने कोई ये डिसीजन लिया है कि यू हैव मूव्ड टू सम डिफरेंट प्लेसेस. आप कोई और जगह पे आपने शिफ्ट करा है, और अभी भी आपके दिल और दिमाग में
वो जो पास्ट के जो मेमोरीज है ना, वो इमोशनल लॉस जो है, वो पेन है, वो अभी भी है। ओके, एंड पाइल ए, आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे आप लोगों में से बहुत लोगों को एक डिसीजन लेने की जरूरत है। ओके, एक चॉइसेस यू नीड टू मेक। किसमें? बहुत लोगों के केस में ये जो डिसीजन है ये है कि आपको एक पार्टनर अगर आपको चाहिए तो उस पार्टनर के लिए आपको एक स्पेस क्रिएट करना होगा। ओके, बहुत लोग हैं जो करियर में इतना ज्यादा आप अटैच्ड हो करियर में कि आप अपने लाइफ में जो इमोशनल इंटीमेसी वाला जो पार्ट है, अ नीड फॉर अ पार्टनर, अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ लविंग कनेक्शन, इसको आप डिनाई कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं फोकस ही नहीं कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को ये बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। सब कॉन्शियसली आपका ये पैटर्न है कि मेरे पास अभी इमोशनली इन्वेस्ट होने वाला कनेक्शन के लिए टाइम नहीं है। ओके, मेंटली आप रेडी नहीं हो, या मेंटली आप उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि यू डीप डाउन एक्चुअली क्रेव फॉर अ बॉन्ड, अ पार्टनर जिसके साथ आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो पाओ। पर हो सकता है पाइले आप लोगों में से बहुत लोग एक सुपरफिशियल लेवल पे कनेक्शंस देख रहे हो, मे बी वन नाइट स्टैंड बहुत लोगों के केस में, और कैजुअल रिलेशनशिप जहाँ पे आपका ज्यादा इमोशनल कनेक्ट नहीं है, ताकि आपको अकेला भी ना फील हो और आपको a friends with benefits kind of a thing, right? But आप अपने लाइफ में जो एक जेन्युइन पार्टनरशिप, एक इमोशनली इन्वेस्टेड पार्टनर की रिक्वायरमेंट है, इसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते आप। बहुत लोगों के केस में ये है कि आप अपने करियर में इतना ज्यादा फोकस्ड हो, आपको लगता है कि अगर रिलेशनशिप में मैं फिर से इन्वेस्ट मैंने करा तो ये मेरे करियर को हैम्पर करेगा, एंड आई डू नॉट हैव एनी टाइम फॉर माय relationship. Okay, so why you are watching this video then? That mean, pile A, deep down you crave for a relationship जहाँ पे आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो पाओ, जहाँ पे एक नर्चरिंग कनेक्शन हो पाओ, उस चीज को आप डिनाई कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोगों के अंदर कुछ डर है, और फियर ऑफ अबंडनमेंट, और फियर ऑफ रिजेक्शन, अकेले हो जाने का डर, फियर ऑफ इंटीमेसी। बिकॉज जिन लोगों को फियर ऑफ इंटीमेसी होती है ना, कि पास में उन्होंने शायद कोई करीब कोई पेरेंट हो सकता है, या कोई लव्ड वन हो सकता है, कोई ग्रैंड पेरेंट हो सकता है, जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा अटैच थे, पर उनके डेथ के बाद, या उनके उनके साथ आपका कोई ना कोई सेपरेशन के बाद, वो जो पेन आपने फील करा है, उसके बाद से आप इमोशनली इन्वेस्टेड कनेक्शन को पुश करते हो, आप सुपरफिशियल कनेक्शन बनाते हो, सुपरफिशियल फ्रेंड्स बनाते हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो, पर आप अपने दिल के करीब किसी को आने नहीं देते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपका वो पास्ट का ट्रॉमा है जो अभी तक हील नहीं हो पाया, पाइल ए। एंड ये जो आपका ट्रॉमा है ना, ये जो आपका पेन है, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में राइट पार्टनर की अपॉर्चुनिटी को पुश कर रहा है। तो देखिए, एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर इंटरनली आप पेन कैरी कर रहे हो, एक ट्रॉमा कैरी कर रहे हो, वो एनर्जी आप रेडिएट आउट करते हो यूनिवर्स में। ठीक है, और यूनिवर्स में आप जो भी रेडिएट आउट करोगे, यूनिवर्स वही चीज आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अगर आप मेंटली या सब अनकॉन्शियसली आप ऐसे मैसेजेस यूनिवर्स को दे रहे हो, सिग्नल्स दे रहे हो कि आई एम स्टिल नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप्स आर पेनफुल, I do not have time for relationship because I am very much focused on my career. So kahin na kahin you are telling universe that you do not want a relationship. और अगर आप बार बार ये चीज बोलते हो कि I do not need anyone, I do not need any relationship, I can be my own. So all these things you are radiating out in the universe. This is working as a spell. ओके, स्पेल्स क्या है? जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वही स्पेल्स हैं। और अगर आपके अंदर कोई ऐसा चीज है कि लव इज पेनफुल, मैं ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं हो सकता क्योंकि बाद में अगर वो छोड़ के चले जाएं तो डर हो, तो बहुत पेन होता है। अगर ऐसे थॉट्स आपके दिल में है ना, या ऐसा ख्यालात कहीं पे भी आपके अंदर है, या आप कहीं पे भी इस चीज को चलाते हो पर आप इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, इस पार्ट को आपके अंदर, तो
आप समझ लीजिए कि आप डिनाइल में हो सकते हो, पर यूनिवर्स हर एक एनर्जी को पिक करता है, और यूनिवर्स आपका जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके बेसिस पे ही चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करवाता है। ओके, सो पाइल ये, अगर आपके लाइफ में राइट काइंड ऑफ रिलेशनशिप नहीं है, या नहीं आ रहा है, या डिले हो रहा है, कहीं ना कहीं यू आर रिपीलिंग दैट, एनर्जेटिकली आप उस चीज को रिपील कर रहे हो। ओके, क्योंकि आप डीप डाउन सोचते हो कि आप प्यार के लायक नहीं हो। क्यों मैं बोल रही हूँ ये चीज? अगर आपके दिल में ऐसा है ना कि अगर मैं बहुत ज्यादा जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, वही इंसान को मैं खो देता हूँ, ठीक है, ऐसा अगर आपका बिलीफ सिस्टम है, कहीं ना कहीं आपका ये थॉट प्रोसेस है, क्योंकि पास्ट में आप जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, हो सकता है आपका कोई करीबी रिलेटिव हो, या आपके ग्रैंड पेरेंट हो, या आपके पेरेंट हो, आपने उसके साथ आपका कोई इमोशनल सेपरेशन हुआ है, या किसी का अनसर्टेन डेथ हुआ है, या कोई पास में किसी के साथ आप कनेक्शन में थे, उसको उसके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, और वो पेन आप कैरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं इसको अपने एक स्पेल बना लिया अपने अंदर कि लव इज इक्वल टू पेन। सो आप, क्या है कि वही चीज को आप रेडिएट आउट करते हो यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स ऑफ कोर्स वही चीज आपको मैनिफेस्ट करके देगा। और अगर आप ये बात करते हो पाइल ए कि मुझे सुपरफिशियल कनेक्शंस में मैं ओके हूँ, ओके, तो आपको सुपरफिशियल कनेक्शन ही मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि राइट काइंड ऑफ पार्टनर मुझे क्यों नहीं मिल रहा जो मुझे समझ पाए, क्योंकि आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो। आपको पहले खुद को समझना होगा कि आप क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। कोई डर है जिसको आप एड्रेस नहीं कर आपने करा है, या जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, आपके लाइफ में राइट पार्टनर नहीं आने का वजह यही है कि आप इस चीज को कहीं ना कहीं रिपील कर रहे हो। और बहुत लोगों के केस में इस ग्रुप का ये भी है कि हो सकता है कि फैमिली में किसी का लॉस, सेपरेशन हो सकता है। आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में हो सकता है कि आप लोग 4 मेंबर थे फैमिली में, शायद कोई एक इंसान छूट गया या सेपरेशन हो गई, बचपन में ही आपने उस पेरेंट को खो दिया। ओके, और तब से आपके अंदर एक ये डर बैठ गया है कि मैं किसी को अपने दिल के करीब आने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो छोड़ के चले जाएंगे देन मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। So now you are manifesting that because it is your belief system. Pile A, I feel that many of you, आप लोग करियर में हो सकता है बहुत सक्सेसफुल हो, मे बी यू आर वेरी मच फोकस ऑन योर मनी। ओके, इस ग्रुप में से एक बहुत ज्यादा एम्बिशियस और एंटरप्रेन्योर्स वाली एनर्जी भी है। पर what you're not understanding, pile A, if you are very much focused on achieving your career goals, creating materialistic achievement, money, finances, which is a good thing, of course. We all need money. But what you're not understanding, pile A, ये कहीं ना कहीं आपका ना एक नंबिंग प्रोसेस हो गया है। आप अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज, ऑब्सेशन, इस सब चीजों में इतना ज्यादा बिजी रखते हो ताकि आपको डिस्ट्रैक्टेड आप रह पाओ, आपके अंदर का जो पेन है उसको प्रोसेस ना करना पड़े। तो कहीं ना कहीं पाइल ए, यू आर डिनाइंग वन पार्ट ऑफ यू। आप अपने आप को इमोशनली नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप के अंदर का जो ये नीड है ना, नीड फॉर अ फुलफिलिंग पार्टनर, इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो आप अपने अंदर का जो इमोशनल एक पार्ट है, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। We need money, of course we need money, but at the same time we also need love and acceptance, because that is one thing that fulfills your heart, that is one thing that fulfills your soul. Okay, love fulfills your soul, nurtures your heart. So uh, your heart actually needs that.
longing for that kind of a connection, but you are denying that fact. आप अपने आप को neglect कर रहे हो emotionally because of your own fear. आप अपने fear को face नहीं करना चाहते. That is why you are actually keeping yourself stuck. ये struggle जो है ये आपने खुद के लिए खुद चुना है और आप ही हो जो अपने आप को इससे फ्री कर सकते हो by going within, addressing this fear कि कहाँ से मुझे ये डर आया है, कहाँ से रूट कॉज है. अगर आप बोलते हो कि पास्ट पर्सन से है, बिल्कुल नहीं है. ये कहीं ना कहीं आप इमोशनली आपने निग्लेक्टेड फील करा है आपने कहीं ना कहीं आपके घर पे. ओके, सो यू नीड टू फिगर आउट द रूट कॉज एंड रूट कॉज को फिगर आउट करने के बाद आपको खुद को ही ये समझाना है कि वो पास्ट में हुआ था. दैट डज नॉट मीन कि हर बार फ्यूचर में भी आपके साथ ये होगा. इट हैज हैपेंड इन द पास्ट. Just because somebody left you or you lost someone who was very close to you, that does not mean कि every time आपके साथ यही होगा. You need to allow your heart to be open because if you do not open your heart, you will not be able to heal. You are very closed off. You need to open your heart. You need to be courageous. You need to face your fears. So by this was your reading and I hope you found it helpful. आपको insight मिला होगा कि जहाँ पे आप गलती कर रहे हो ये एनर्जेटिकली आप ही कहीं ना कहीं इस चीज को रिपील कर रहे हो और क्यों रिपील कर रहे हो, कहाँ पे काम करने की जरूरत है. मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको पर्सनल सेशंस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. हेलो फाइल बी, अगर आपने इस पर्टिकुलर कार्ड को पिक करा था तो ये आपकी रीडिंग है. सो फाइल बी, what I can see that the reason you're not attracting the right kind of a partner in your life, अगर ये आपका कंसर्न है कि क्यों मेरी लाइफ में सही पार्टनर नहीं आ रहे हैं, why it is happening with me. So पाइल ए, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि आपके लाइफ में एक अनहेल्दी पैटर्न, एक साइक्लिक पैटर्न आपकी रिलेशनशिप में चल रही है. एक सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न है पाइल ए आप लोगों के लाइफ में. ओके, जिसके वजह से आपको जो सही पार्टनर है वो नहीं मिल रहा. ये अनहेल्दी एक टॉक्सिक पैटर्न आपका रिलेशनशिप का कहाँ से आ रहा है मैं बताती हूँ. मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है पाइल ए कि ऑफ कोर्स ये बहुत लोगों के केस में इस ग्रुप में बचपन से है. कुछ टॉक्सिक पेरेंट आपके लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थे. बहुत लोगों के केस में कंट्रोलिंग पेरेंट है, बहुत लोगों के केस में थोड़ा सा अब्यूजिव पेरेंट है, बहुत लोगों के केस में ऐसा है कि आपके पेरेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने के वजह से शायद उन्होंने आपको किसी और के साथ कंपेयर करा है या आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ है कि आप वर्दी नहीं हो या यू आर नॉट गुड इनफ. यू फेल दैट यू आर नॉट गुड इनफ or something is wrong with you. And you might not get a right kind of people, you might not attract right kind of opportunity. तो कहीं ना कहीं एक लो सेल्फ एस्टीम आप लोगों के लाइफ में आप लोगों के अंदर है. ओके, और बहुत लोगों के केस में मुझे ये भी लगता है कि आपके फैमिली में कुछ डिसफंक्शन था. डिसफंक्शन मतलब बहुत बचपन में जब आप बड़े हो रहे थे तब शायद आपने बहुत केओस देखा, बहुत फैमिली इश्यूज देखे होंगे. ठीक है, पेरेंट के बीच में रेगुलर अनबन, रेगुलर फाइट, कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा है जिसके वजह से आपको कहीं ना कहीं शादी से डर भी लगता है या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से डर लगता है. एंड पाइल बी, व्हाई दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्टिल योर इनर चाइल्ड, आपका जो यंगर वर्जन है ना उसके मेमोरीज में जो वो टॉक्सिक मेमोरीज थी, जो रेगुलर घर में अशांति होना, घर में केओस होना, कॉन्फ्लिक्ट होना या मम्मी पापा के बीच में झमेले होना, ये सारी मेमोरीज आपके अनकॉन्शियस में स्टिल स्टोर्ड है. ठीक है,
तो आपको शादी के नाम से डर लगता है। एंड आई ऑल्सो फील पाई बी, अगर इस ग्रुप में बहुत सारे लोग, अगर आप फीमेल हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो सकता है मेल भी हो सकते हैं, पर फीमेल अगर हो, आप लोगों के केस में एक डर है, आप लोगों का एक मास्कुलिन वुंड है। दैट मीन कहीं ना कहीं फादर के साथ आपका कोई रिजेंटमेंट है। फादर हो सकता है या सिबलिंग हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, कोई टाइप का कोई मैस्कुलिन फिगर है जिनके साथ आपका कुछ अनबन है या कुछ अनफॉरगिवनेस है। हो सकता है आप अवेयर भी नहीं हो इस चीज के बारे में। ओके आपको लग सकता है कि नहीं, मेरे फादर के साथ तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे ब्रदर के साथ तो नो, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, मेरे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट द एनर्जी इज टेलिंग मी that there is some kind of resentment, unforgiveness towards masculine energy. Men, लड़के लड़के अगर है या फिर पुरुष अगर है, उनको आप बहुत अच्छे नजर से नहीं देखते। ये आप एक डिस्कवर कर सकते हो। आप अगर पेन एंड पेपर लेके, ये कुछ क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, इसमें अगर आप ऑटोमेटेड आई मीन जर्नल करो। ओके कैसे? हाउ डू आई परसीव men? Men are dash, and you keep on writing whatever comes from within. अपने आप को रोकना नहीं है, बस फ्लो होने देना है। Men are dash. ओके क्या आता है, आप क्या क्या आ रहा है आपके अंदर से, जो भी आ रहा है ना, विदाउट फिल्टर लिखो, बस लिखते जाओ। जो भी चीजें आप लिखोगे वो आपके अंदर है। ओके इफ यू आर अ मैन, ओके वॉचिंग दिस वीडियो, आप एक चीज लिखो, वुमेन आर dash, and you keep on writing everything that is coming from within. ओके मतलब ये आपका परसेप्शन बताएगा। अगर आपको कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना जब आप जर्नलिंग करोगे, आपको फ्री फ्लो करने देना है अपने हाथों को। ओके वुमेन आर, यू कीप ऑन राइटिंग, थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हो, थोड़ा सा ब्रीथ वर्क कर सकते हो, देन यू कीप ऑन जर्नलिंग। जो भी आ रहा है सब लिखते जाओ, अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है। मैरिजेस आर, ठीक है, फिर मेन को लिखोगे आप। अगर आप, इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, यू विल राइट डाउन मेन। ओके मेन आर, ओके नाउ आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन मैरिजेस आर, हाउ यू परसीव मैरिजेस आर, लिख के आपको थॉरोली लिखने देना है अपने आप को, जो भी आंसर आपके दिल से आ रहा है। ओके जो भी आपके अंदर से आ रहा है उसको बस फ्लो होने देना है, अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है कि नहीं नहीं ये मैंने नहीं लिखना है, वो लिखना है। नो, व्हाटएवर इज कमिंग फ्रॉम विद इन, वो सारा आपके अंदर है। ठीक है आप उसको देखोगे नहीं तो आप उस पर काम भी नहीं कर पाओगे, वो आपके अंदर एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा। तो इसलिए अपने सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो, आप वुमेन के लिए लिखोगे कि वुमेन आर, एंड देन यू विल राइट डाउन मैरिजेस आर, कमिटमेंट्स आर। ओके सो यू, आप इस ग्रुप के जो भी लोग हैं ना, आप ये जर्नलिंग जरूर करना, तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या क्या लिमिटिंग बिलीव्स आर रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू ऑपोजिट जेंडर। और जब आप लिखोगे ना ये सारी चीज को, जब अंदर से बाहर निकालोगे, क्योंकि मून का कार्ड बताता है कि रिफ्लेक्शन इज नीडेड, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज नीडेड, आपको समझ में आएगा कि यू आर एनर्जेटिकली पुशिंग राइट काइंड ऑफ अ पार्टनर इन योर लाइफ because of your childhood memories, because of your perception about the opposite gender. आपका जो भी परसेप्शन है वो आपका बिलीफ क्रिएट करता है, वो आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्रिएट करता है, और आपकी अगर प्रोग्रामिंग जैसी है ना, वैसे एक्सपीरियंस आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। इफ यू हैव दिस नोशन दैट ऑल मेन आर टॉक्सिक, आप बार बार फ्रीक्वेंट ऐसे ही एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, जहां पे आपको टॉक्सिक मेन ही मिलेंगे। बेस्ड ऑन योर प्रोग्रामिंग, बेस्ड ऑन योर सबकॉन्शियस पैटर्न, यू क्रिएट लाइफ सिचुएशन, क्योंकि वो हमारा कार्मिक मेमोरी होती है और उसके बेसिस पे हम एनर्जेटिकली चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो इंटरनल प्रोग्रामिंग को चेंज करना बहुत जरूरी है। जब आप इंटरनली चीजों को चेंज करने लगोगे ना, तो आपके बाहर की आउटर रियलिटी भी चेंज होगी। सो बाय बी, यू माइट
say that I have built this belief because that is what I experienced. But the truth is, you experienced all those situations because of that belief which was inside of you. हमारी ये सारी बिलीव ना बहुत यंग टाइम से ही बिल्ड हो जाती है. कभी कभी कुछ बिलीव हमारे पास्ट लाइफ से आते हैं. अगर आपने बचपन में चीजों को देखा है, विटनेस करा है, कॉन्शियस माइंड भी अगर आपका बिल्ड बहुत बाद में होता है, हमारा जो ईगो है वो बहुत बाद में बिल्ड होता है. 0 to 7 years, जब 7 years के बीच में जब आप बेबी भी रहते हो ना, इवन वेन यू आर इन मदर वूम, अगर तब भी आपकी मदर जो है कोई डिसफंक्शनल फैमिली में वो थी तब, और या फिर उन्होंने डेली झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, अपने हस्बैंड के साथ परेशानी, ये सब देखा है, तो वो बच्चा जो वूम में रहता है वो उसके प्रोग्रामिंग वहां से भी होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, तो कॉन्शियसली शायद आपको नहीं पता कि ये प्रोग्रामिंग कब से आ रहा है, ये प्रोग्रामिंग बहुत पहले से है, इसीलिए आपको ऐसा एविडेंस बाहर मिलता है. एविडेंस बाद में क्रिएट होता है. जब भी आपके लाइफ में कोई एक चीज होते हुए आप देखो ना, आप समझ लेना ये जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके पास्ट बिलीव्स की वजह से हो रहा है. तो बिलीफ पहले क्रिएट होता है, फिर आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट होता है. तो कुछ कुछ बिलीफ तो हमारे ऐसे हैं पाइल भी, जो हम जब हमारा एज था 0 years, मतलब आप ऊंग में थे, मदर वूम में, ऑफकोर्स कॉन्शियसली आपको याद भी नहीं होगा कि क्या आपकी मदर कौन सी सिचुएशन से गो थ्रू कर रही होगी. अगर आपकी मदर एक ऐसे एनवायरनमेंट में थे जहाँ पे हर दिन झगड़ा, गाली गलौज होता है, जहाँ पे आपके फादर के साथ एक झगड़ा हो रहा है, आपके फादर के साथ एक इमोशनल गैप है आपकी मदर का, तो वो जो भी पेन आपकी मदर गुजरती है ना, वो बच्चा भी एक्सपीरियंस करता है वूम्ब में. वहां से उसका प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाता है. सो यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ योर बिलीफ, एंड विच इज ऑब्वियस थिंग, आपको नहीं पता होगा. Okay, that is why healing is very important. That is why inner work is very important, Palvi. It is not at all a matter of joke. Until and unless you start exploring your inner world, you will keep on blaming your fate. Your fate is nothing but your अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग. आपका जो किस्मत बोलते हैं ना लोग, जो किस्मत बोलते हैं, जो फेट है, जो लिखा हुआ है, लोग कहते हैं लिखा हुआ कुछ नहीं है, बस आपका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, आपकी मेमोरी है. इसीलिए आप भले ही प्रेडिक्शन करो या ना करो, दैट इज अप टू यू, पर सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है, सेल्फ डिस्कवरी बहुत जरूरी है, इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना जरूरी है, अपने बिलीफ में झांकना जरूरी है. इनर वर्क, spiritual work is very 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 important if you really struggling in your life and you want to design your life the way you want to. आपके लाइफ में अगर आप कंट्रोल पाना चाहते हो कि मेरे हाथ में मेरे लाइफ का पावर रहेगा, कि ओनली आई नो व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ एंड ओनली आई विल बी एबल टू क्रिएट दैट लाइफ फॉर मी, सो यू नीड टू लर्न टू डिस्कवर योर इनर वर्ल्ड. सेल्फ मास्टरी आपको सीखना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा. जो खुद से भागते अगर हो आप, तो अभी रुक के अंदर देखना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि अंदर अगर प्रोग्रामिंग चेंज होगी तो बाहर आउटर रियलिटी चेंज होगी. जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके कार्मिक मेमोरीज की वजह से ही होता है. ओके, सो पाइल बी, मैंने आप लोगों को ग्लिम्स दे दिया है कि कहाँ से कौन सी चीज हो रही है और कैसे वो आउटर रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है, कि आपको राइट काइंड ऑफ पार्टनर नहीं मिल रहा है या उसमें डिले हो रहा है. आई ऑल्सो फील पाइल बी, मेनी ऑफ यू यू आर वेरी क्लोज ऑफ टू न्यू कनेक्शन. ओके, आप प्यार के लिए या रिलेशनशिप के लिए वेलकमिंग नहीं हो, ठीक है, बिकॉज यू फियर कनेक्शंस. ओके, यू फियर कमिटमेंट. आप लोगों को लग सकता है कि यहाँ ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. आप लोगों का हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा आप दिमाग में ओवरथिंक करते हो, बहुत ज्यादा अलग अलग ऑप्शन सोचते हो कि हाँ ये पार्टनर नहीं, वो पार्टनर, वो पार्टनर नहीं, ये पार्टनर, बट कहीं पे भी आप लोगों का शायद काम नहीं बना है. मे बी आप लोगों ने बहुत कनेक्शन चेंज करा है, या आप अलग अलग जगह पे जाके देखे हो, पर सिचुएशन सेम ही है. क्यों है?
बिकॉज ये एक्सटर्नल पार्टनर चेंज करके सिर्फ होगा नहीं, ये इंटरनल वर्क से होगा। अदरवाइज आप देखोगे कि आप अलग अलग पार्टनर को तो अट्रैक्ट कर रहे हो पर स्टोरी सेम ही है। इट इज लाइक सेम स्टोरी विथ मल्टीपल, विथ डिफरेंट फेसेस। कहानी के हीरो हीरोइन एक्ट्रेस एक्टर्स चेंज हो गए हैं पर स्टोरी जो है वो सेम है। क्यों? बिकॉज योर एक्सटर्नल लव स्टोरी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर लव स्टोरी। इनर लव स्टोरी, आपका जो दिमाग में आपने जो रिलेशनशिप का नैरेटिव कैरी कर रहे हो वही बाहर दिख रहा है आपको। तो आपको इनर वर्ल्ड में वो स्टोरी को चेंज करना है। एंड पायल बी, आई वुड लव टू वर्क वन टू वन विथ यू इफ यू आर विलिंग टू डू द इनर वर्क। अगर आपको रिलेशनशिप में काम करने में आप इंटरेस्टेड हो, अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में इंटरेस्टेड हो और हील करने में इंटरेस्ट हो, आई वेलकम यू। यू कैन रीच आउट, द व्हाट्सएप नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अभी भी अगर स्ट्रगल कर करके आप थक गए हो, देन यू स्टॉप सर्चिंग लव फ्रॉम आउटसाइड, फर्स्ट start to heal from within. Okay, so like, share and subscribe to my channel Pile B. I hope you found it helpful, and click on the bell icon so that every time I upload a video you get notified and you become aware of your own inner world. I'll see you next. Take care. Bye bye.